So today we will learn one very important aspect of the sugars. Some sugars are reducing sugars and some sugars are non-reducing sugars. You might have heard of this. Why some sugars are reducing sugars? Why some sugars are called as reducing sugars? आवाज आ रही है मेरी सब लोगों तक? यस सर। यस। ये समझना काफी जरूरी है आप लोगों के लिए कि शुगर रिड्यूसिंग कब होता है एंड नॉन रिड्यूसिंग कब होता है। ठीक, तो अब देखिए, एल्डोजेज एंड कीटोजेज का स्ट्रक्चर आपको याद हो तो हम बताए थे कि अगर इंट्रा चेन क्योंकि एल्डिहाइड कैन रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके, so aldehyde reacts with the hydroxyl group intrachain to form hemiacetal. ठीक, hemiacetal बनाता है और hemiacetal is in equilibrium with, hemiacetal क्या हो गया आपका? ring form structure. This ring structure is in equilibrium with the open chain reaction, open chain structure. So even in the aqueous solution, majority of the carbohydrates will be in the hemiacetal form, in the ring form, okay, these monosaccharides, but there is interconversion between the hemiacetal and free aldehyde group. Although majority of will be in this state, hemiacetal state, some of them will be in the open chain state. So when in the open chain state, the aldehyde group is free now, okay, double bond hai, and OH is free here. Now what happens in this hemiacetal state? Because hemiacetal state and the open linear structure is in equilibrium. So some of them are in this state, some of them are in this state. So this species, this carbon, carbonyl carbon, can be oxidized. This carbon can be oxidized to give rise to कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अभी हम और डिटेल में आपको बताएंगे ये। बट ये कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? आपका शुगर इज ऑक्सीडाइज्ड, इसीलिए इसको एजेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या कर रहा है? किसी दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। मेरी बात आ रही है आप लोगों की समझ में? यस सर। यस सर। तो शुगर्स, आप ये समझ लीजिए कि सारे मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो रिड्यूसिंग शुगर है, सारे मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ओके। इसके अलावा भी अदर मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है आप खुद से समझ जाओगे, क्योंकि अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, एल्डिहाइड ग्रुप इज फ्री। सो दिस एल्डिहाइड ग्रुप या तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करके हेमीएसिटल बनाया, या नहीं तो ये एल्डिहाइड ग्रुप अगर आपने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया है एक्वस मीडियम में, ओके, तो उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में
दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल गेट रिड्यूस्ड, ये याद रखो उल्टा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल गेट रिड्यूस्ड एंड रिड्यूसिंग एजेंट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पर? कोई भी ABCD XYZ मान लो, कोई भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिए, पहले ये समझ लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम डाल दिए एक्वस मीडियम में। सो दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल गेट रिड्यूस्ड इफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड्स फ्री aldehyde group. Okay, so what will happen in the reaction? You will get the oxidized aldehyde group as a result of the reaction between the oxidizing agent and your reducing sugar. reducing sugar के पास free aldehyde group है या free ketone group है। Okay, basically free ketone group भी aldehyde group में tautomerize होता है and then aldehyde basically react oxidize। Okay, so इसीलिए फ्रुक्टोज भी reducing agent। तो फ्रुक्टोज जो है solution में because of the tautomerization effect, some of the fructose, okay, there is an intermediate stage in which the fructose is in the aldehyde form also। Okay, so basically what is happening, the aldehyde group in the reducing sugar, aldehyde group present in the reducing sugar is getting oxidized in the presence of a oxidizing agent। तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? रिड्यूसिंग सुगर। ठीक है, in the presence of oxidizing agent, as a result of which what you get, a oxidized sugar। ऑक्सीडाइज सुगर में क्या है, अब एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो गया तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। और आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो था वो रिड्यूस्ड फॉर्म में। समझ में आया आपको? यस सर। तो वो शुगर जो रिड्यूसिंग शुगर है उसके पास क्या होना चाहिए? फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। ठीक, ओके। अब जो भी शुगर है साइक्लिक फॉर्म में भी, सो दे दैट शुगर इज इन hemiacetal form, and hemiacetal form because of the tautomerization it also exists in the aqueous solution. Some of the sugars exist in open chain structure form. So now the aldehyde group is free, so that aldehyde group will react with the oxidizing agent to give rise to oxidized reducing sugar plus reduced oxidizing agent। समझ में आई बात आपको? यस सर। यस सर। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। एग्जाम में पूछ देगा 5 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर रिड्यूसिंग सुगर्स। ओके, तो मोनोसेक्राइड जितने भी हैं वो सब रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों? क्योंकि उनके पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री है ना। स्ट्रक्चर देखे हो, सबके पास एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप इज अवेलेबल, सो दे विल रिड्यूस द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तब सवाल उठता है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो आप जान लीजिए, पहले यूज होता था, सबसे पहले यहाँ एक फेलिंग्स रिएक्शन है।
फेलिंग्स रिएक्शन का फिर एक मॉडिफाइड फॉर्म आया जिसका नाम है सही से हो ना? बेनेडिक्ट्स रिएक्शन। सुने हो नाम? बेनेडिक्ट्स रिएजेंट का नाम सुने हो? यस सर। ये क्या है? दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फेलिंग्स रिएक्शन और फेलिंग्स रिएजेंट। बेनेडिक्ट्स रिएजेंट अगर बोलोगे तो यहाँ भी फेलिक्स रिएजेंट का मॉडिफाइड फॉर्म है बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। तो फेलिक्स रिएक्शन का पहले इजाद हुआ था, उसके बाद में मॉडिफाई करके बेनेडिक्ट्स रिएजेंट बनाया गया। सो बेसिकली इसमें क्या है? द प्रिंसिपल इज देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक आयन। ओके, क्यूप्रिक आयन। क्यूप्रिक, अब ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है क्यूप्रिक आयन। क्यों? क्योंकि दिस विल टेक द इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ओके, so oxidation is also the gain of electron, sorry, the loss of electron. Okay, and reduction is the gain of hydrogen and gain of electron, and oxidation is loss of hydrogen and loss of electron or loss of electron. So अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और फॉर्म कर रहा है। ये क्यूप्रिक स्टेट से क्यूपरस स्टेट में आ जाता है। क्यूपरस स्टेट में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ओके, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो एज ए रिजल्ट, यस सर। as a result of this reduction, because in this Benedict's reagent not only the cupric ions are present, other compounds are also present such as NaOH, water, etc., other things. So this is a complex mixture. Now if you place this Benedict's reagent with reducing sugar, suppose glucose, glucose का aldehyde group will get oxidized. Okay, और Benedict's reagent में copper ion है and this will get reduced. So what you will get at the end of the reaction? You are getting a glucose molecule which is carboxylated now at the carbonyl carbon. पहले क्या था? वो एल्डिहाइड था एट द कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप जो था वो एल्डिहाइड था, अब कार्बोनिल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक हो गया। सो ये हो गया, शुगर जो है ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ओके, तो रिड्यूसिंग एजेंट है इसीलिए ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस किया? किसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट है? कॉपर आयन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट था। ओके, समझ में आया आपको ये रिलेशन? जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी रिड्यूसिंग शुगर्स जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और यही बेसिस भी है ग्लूकोज एस्टिमेशन का बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के थ्रू, क्योंकि जो क्यूपरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है इन द रिएक्टेंट, ठीक है, ये क्यूप्रिक स्टेट से ये CuSO4 में होता है। ये क्यूप्रिक स्टेट CuSO4 नाम सुने होंगे, Cu2+ और SO4 2- आयनिक कंपाउंड है। ओके, कॉपर सल्फेट है ये,
तो इस क्यूप्रिक स्टेट में से ये क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, सॉल्यूशन से ऑक्सीजन ले के साथ कंबाइन किया, तो क्यूप्रस ऑक्साइड जो है CuO2 जो है ये रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, इसका कलर रेड होता है, ठीक है। तो इस रेड प्रेसिपिटेट का कलर का एब्जॉर्बेंस लेकर के देन वी फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिड्यूसिंग सुगर प्रेजेंट इन द सैंपल, ठीक। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। कुछ पूछना है किसी को? सर रेड प्रेसिपिटेट का सर केमिकल नेम क्या होगा सर? क्यूप्रस ऑक्साइड। ओके, अब देखिए थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं, क्योंकि रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझना। इतना कंसेप्ट समझ में आया इतना? अब आप किसी शुगर को देख के, सपोज हम आपको, आप ये सब मत देखो, हम सिर्फ एग्जांपल देखो, मान लो ये दिख रहा है आपको, फिगर दिख रहा है? यस सर। अब बताइए आप, मोनोसेक्राइड तो सारे रिड्यूसिंग हो गए, क्योंकि उनका कार्बोनिल कार्बन पर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो था वो मौजूद था, कीटोन का बगल में था, एल्डिहाइड का तो कार्बोनिल कार्बन फर्स्ट कार्बन ही है, तो मौजूद था। अब बताइए डाइसेक्राइड्स में, इसीलिए हम सवाल पूछा जाता है व्हाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब आप बताइए स्ट्रक्चर देख करके, आपको स्ट्रक्चर अगर हम दिखा दें तो आप स्ट्रक्चर देख करके बता सकते हो कि ये नॉन रिड्यूसिंग है कि रिड्यूसिंग है। अब देखिए लैक्टोज, दिस डाइसेक्राइड इज मेड अप ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, लैक्टोज। सो ये बताइए कि ये नॉन रिड्यूसिंग है कि रिड्यूसिंग है, शुगर है। स्ट्रक्चर देखिए और बताइए। रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग है? रिड्यूसिंग शुगर। अगर रिड्यूसिंग है तो क्यों है बताइए? और नॉन रिड्यूसिंग नहीं है तो क्यों नहीं है? देखो सर इसका कार्बोनिल ग्रुप। देखिए ये जो डाइसेक्राइड है, अब क्या प्रीरिक्विसाइट था कि देयर शुड बी हेमी एसिटल, हेमी एसिटल होना चाहिए। हेमी एसिटल मतलब वो एल्डिहाइड ग्रुप जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ इंटरैक्ट किया है, वो हेमी एसिटल जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है इन द फ्री फॉर्म लीनियर स्ट्रक्चर के। ओके, सो एल्डिहाइड ग्रुप इज फ्री। अब बताइए यहां पर कहां पॉसिबल है एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होने का? ये गैलेक्टोज जो है, पहला जो है ये गैलेक्टोज मॉलिक्यूल है, सो यहाँ कार्बोनिल कार्बन इज इंगेज्ड विथ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सो दिस इज नॉट अवेलेबल। ओके, यहाँ पर क्या हुआ है एक्चुअली, हेमी एसिटल जो बना था उसका फिर एसिटल बन गया है यहां पर एट दिस कार्बन नंबर 1। हेमी एसिटल में क्या हो रहा था, एल्डिहाइड से अगर 2 बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करेगा तो फर्स्ट एडिशन इज द फॉर्मेशन ऑफ द हेमी एसिटल, first reaction is the formation of the hemiacetal. Carbon number 1 is interacted with the hydroxyl group of the carbon number 5. So this, because of this bond formation, this is the hemiacetal. And the second addition of the OH from another monosaccharide
This is the second OH coming from the carbon number 4. Okay, the second OH coming from the second addition of the OH coming from another monosaccharide will result into the formation of the acetal via formation of the glycosidic bond. This is glycosidic bond. तो यहां पर क्या हो गया, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू के फर्स्ट कार्बन पर एसिटल का फॉर्मेशन हो गया, पहले हेमी एसिटल एंड देन एसिटल। तो ये इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप को दे सके, कभी भी ये ओपन चेन नहीं होगा, यहाँ पर ये क्लोज ही होगा, ये हमेशा रिंग स्ट्रक्चर में रहेगा यहाँ पर। ओके, दिस गैलेक्टोज। व्हाट अबाउट दिस वन? Glycosidic bond is via the carbon number 4. Carbonyl carbon is free. The hemiacetal here is free. Okay. So this hemiacetal can open up and give rise to aldehyde group. So the presence of the hemiacetal here will make this disaccharide lactose as reducing sugar. Okay. समझ में आया या फिर से बताऊं? एक बार फिर से सर। अगर आपको एसिटल और हेमी एसिटल समझ में आ गया है तो आपको ये समझ में आ जाएगा आराम से। क्या हो रहा था, एल्डिहाइड ग्रुप जो है उसमें 2 बार OH का एडिशन हो रहा था। फर्स्ट एडिशन एज ए रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ द OH, इंट्रा OH जो था, एक ही चेन का OH, यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर 1 जो था उसके साथ कार्बन नंबर 5 का OH इंटरेक्ट किया। तो फर्स्ट एडिशन इज रिजल्टिंग इनटू द रिंग स्ट्रक्चर, giving you the ring structure, and ring structure is in equilibrium with the linear structure also. So in a solution you will find some of the monosaccharide in the form of the ring, some of them will be in the linear. So the presence of the hemiacetal will give rise to linear form also. So linear form can interact with the oxidizing agent such as Benedict's reagent, and it will oxidize the reducing sugar. अब second addition of the OH हुआ यहाँ। ये OH जो है कहाँ से आया, यहाँ पर था ग्लूकोज में, ग्लूकोज के 4th कार्बन पर ये OH आकर के हेमी एसिटल के साथ इंटरैक्ट करके फॉर्मेशन ऑफ द एसिटल हो गया यहाँ। ओके, ये एसिटल फॉर्मेशन की वजह से नाउ दिस विल बी रिमेन्ड क्लोज्ड एंड दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर द oxidizing agent. Okay, this is not available for the oxidizing agent to get it reduced further into the carboxylic form. But here you can see that there is a presence of hemiacetal group. So here the hemiacetal formation has taken place, and because of this will react with oxidizing agent, giving rise to oxidized sugar. Okay, and the sugar is called as reducing agent because the sugar is reducing the oxidizing agent, Benedict agent. So you will obtain the reduced oxidizing agent and oxidized reducing agent. Oxidized reducing agent क्या था आपका, sugar, and reduced oxidizing agent क्या था, Benedict solution after the reaction. Have you got my point? Yes. अभी समझ में आया? तो reducing Yes, sir. रिड्यूसिंग शुगर अब आप पहचान लोगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर आप पहचान लोगे, हेमी एसिटल आप ढूंढोगे उसमें। तो अब बताइए कि ये क्या है। सेकंड में दिखाता हूं, सुक्रोज।
For example, now sucrose. Now find out, is there anywhere you can find in this group hemiacetal anywhere? In sucrose? No. That is why sucrose is non-reducing sugar, because sucrose is a disaccharide of fructose and glucose. Okay, so क्या हो रहा है यहाँ पर? फ्रुक्टोज, ये फ्रुक्टोज है और ये ग्लूकोज है। अब इसमें जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो किसके बीच में है? कार्बन नंबर 1, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 से अल्फा फॉर्म में है, OH नीचे में था, कार्बन यहाँ पर, अभी हम स्ट्रक्चर में आएंगे अल्फा बीटा में तो आपको बताएंगे। देखिए ये बीटा गैलेक्टोसाइड के साथ बीटा गैलेक्टोसाइड, तो बीटा गैलेक्टोसाइड में क्या हो गया? बीटा फॉर्म में OH विल बी द सेम साइड ऑफ द CH2OH, तो OH जो था प्लेन के ऊपर था, और ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के OH के साथ इंटरेक्ट हुआ, तो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 जो है ग्लूकोज के प्लेन के नीचे था, OH नीचे था, सो इसके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, इसलिए ये S जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। दैट मीन्स इट इज बिटवीन द बीटा गैलेक्टोसाइड एंड, ये भी ग्लूकोज भी बीटा है, लेकिन ये बीटा तो कार्बन नंबर 1 यहाँ पर है। Okay, the bond formation is taken between the carbon number 4 and carbon number 1 of first one. So this is that's why this bond is like this. Here in this, the bond is between the alpha glucose, तो अल्फा में OH नीचे था प्लेन में, and between the second carbon of the beta, ये कार्बोनिल कार्बन है, ओके, बीटा फ्रुक्टोज का, दोनों कार्बोनिल कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बना है इन सुक्रोज। ठीक, यहां पर कार्बोनिल कार्बन फ्री था, ये कार्बोनिल कार्बन प्लस दूसरे का पीछे वाला कार्बन के बीच में बॉन्ड है। यहां पर दोनों मुंडी मुंडी के बीच में कार्बोनिल कार्बन, और यहां पर भी चूंकि नंबरिंग तो होगा, कार्बोनिल कार्बन के जो एंड के सबसे नजदीक वाला कार्बन था वहां से 1 नंबर यहां से शुरू हुआ, और ये यहाँ पर कार्बन था जिसके साथ कीटोन ग्रुप था, ये डबल O बॉन्ड था पहले लीनियर स्ट्रक्चर में, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, तो ये 5th कार्बन के OH ग्रुप के साथ इंटरेक्ट हुआ फ्रुक्टोज में। ठीक है, तो ये पेंटा, इसका 5 मेंबर रिंग है, फ्यूरान रिंग है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो था वो बीच में था, ओके, कार्बोनिल कार्बन, तो कार्बोनिल कार्बन के साथ, नाउ दिस कार्बोनिल कार्बन itself engaged in the glycosidic bond formation, so this carbonyl carbon will not get interconverted into the aldehyde group, so here there is no possibility of the formation of, there is no hemiacetal group here, okay, कार्बोनिल कार्बन इधर है, दोनों के साथ अटैच्ड है, और ये पीछे वाला कार्बन था उसका, so this is not carbonyl carbon, okay। बात आई समझ में? Why sucrose is non-reducing? Because there is no availability of hemiacetal here, okay। अब बताइए इसमें है कि नहीं है? ट्री हेलोज, whether this disaccharide is reducing or non-reducing? हेलो, नॉन रिड्यूसिंग है सर। non, कार्बोनिल ग्रुप तो yes, this is again non-reducing sugar। ठीक, समझ गए आप लोग? कार्बोनिल कार्बन देखिए, ये 1 और 1 दोनों इन्वॉल्व है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, और there is no hemiacetal group available here for the to get oxidized further। ठीक, अब आइए